Pandda, Deputy Commander Adarsh Behra. Junior Boys Head Commander Gopal Das. The guest of this occasion, Rotarian Gangasagar Pati sir, the President of Rotary Club of Bargarh, our Chairman sir, the colleagues of respected Rotarians present today, the members of the Innerfield Club of Bargarh, our valued parents, teachers, and my dear students. Country. It reminds us about the values that we should uphold than what the freedom fighters have sacrificed and struggled for. In our institution, we not only impart the knowledge, but also we impart the characters, discipline, and the spirit of service among our students. We feel very proud of our talented students. Today, our students have beautifully depicted their vision for their India in 2047, and they have depicted their dreams, their aspirations, and their visions, then what they will see the great nations in 2047 in the hardboard topics. We feel very proud of our students, and also it is a proud moment to announce that all our students, they are participating in different competitions in different levels and bringing laurel and recognitions to our schools. And at this moment, I am very much proud to announce that recently they held the district level competitions. The maximum numbers of winners, they will be felicitated in the district level celebration is from our schools. Our 5 number of students, they will be felicitated in the district level celebration. I congratulate all the teachers, all the mentors, all the judges, and all the parents for their tremendous effort.
Students, you are the future of the nation. You are the torch bearer who will carry forward the legacy of this great nation. Remember, what you choose to do today will shape the destiny of the country tomorrow. So my sincere request to all the students, be honest in your work, be disciplined in your actions to make your country stronger, united and prosperous. Thank you, Jai Hind. Every year, due to some sort of incident that happened 79 years ago, our country, which was in the shackles of slavery, we were under colonial rule for nearly 200 years. And we could be free on that day, that particular day, 15th August of 1947, due to the efforts, due to the hard work, due to the thought, due to the strength of our freedom fighters, who were led by such stalwarts like our Bapu, Gandhiji, Nehruji, Netaji Subhash Chandra Bose, Rani Lakshmi Bai. These are few of the names. There were innumerable of our freedom fighters who were instrumental for the country to become free on that particular day. And I feel very proud that after 79 years, on the 79th day, I am before you as a chairman of the school, and I feel pride, and my heart knows no pleasure on this particular day, when we can see that our children are happy because they are free. We are happy because we are free. And but the freedom that comes with such a we can say blood, sweat and tears of countless patriots, that should be valued by the current generation of the country. We should always keep it in mind that this freedom didn't come without a price. And our school, I believe that the education is the most powerful tool we have to honor their legacy. Our classrooms are not just spaces for learning, they are laboratories of leadership, gardens of creativity and temples of transformation. As an educational institute, as a school, dear students, you are our torchbearers of tomorrow, who will shape the country in the future. The future of India lies not only in the hands of our politicians, they are also needed for the governance of the country, but it also lies in the minds of young dreamers, thinkers and doers like you. My students, whether you become scientists, artists, entrepreneurs or teachers, your contribution will shape the destiny of this beloved nation of ours, that is Republic of India. Let this Independence Day
remind you that freedom is not just a right, it is also a responsibility. The responsibility to speak with honesty, to act with integrity, and to serve with humility. Always, my students, please keep it in mind that the freedom that was given to us 79 years back by our forefathers always came with responsibility, not only the rights. And let us talk something about the current scenario, in the international scenario, the global world that we are living in. Our country, India, stands very tall on the global stage. We are a nation of roughly 1.4 billion voices, rich in culture, diversity, and innovation. From space exploration to digital revolutions, from classical arts to cutting-edge technology and science, India is rising and the world is watching us. But we must also confront all the challenges that remain. India is still a country with poverty, inequality, climate change, and social injustice. These are not just the problems for the government to solve. They are calls to action for every citizen, especially the youth. Let us remember that our strength lies in our unity. India is a tapestry woven from thousands of languages, religions, and traditions, and yet we are one. Let us keep it in mind. Let us celebrate that unity, protect it, and pass it on to our future generations. As we hoist the tricolor today, let us remind us of the sacrifices of the past, the promises of the present, and hope of the future. Let it inspire us to be better citizens, better students, better teachers, better leaders, and above all, better human beings. My dear children, in conclusion, I urge each one of you to carry the spirit of Independence Day beyond this celebration. Let it live in your actions, your choices, and your dreams. Let us build an India that is not only free, but fair, fearless, and flourishing. And I take this opportunity to thank each and everyone who are present here with us on this particular occasion. Our principals are the devoted teachers of our institution, my colleagues in the Rotary, and our inner members with the president and other dignitaries from the inner wheel, our non-teaching staff, and our president, chief guest of this occasion. We thank each one of you and our parents, no doubt about that, because our parents are there, that is why we are here. So we thank each and everyone present on this occasion, that you are with us on this auspicious occasion to celebrate the freedom of the country. Thank you once again. Vande Mataram. मंचासना मुख्यातिथि महोदयः, प्रधानाचार्य महोदयः, शिक्षक शिक्षिकाः तथा मम प्रिय भ्रातरः भगिन्यः च। अहं सुप्रीति भोई नवमकक्षायाः छात्रा अद्य स्वतन्त्रता विषये वदामि। स्वतन्त्रता मानवस्य स्वभावः अस्ति। अल्पवयस्क बालकोऽपि कस्यापि नियन्त्रणे वसितुं न इच्छति। स्वतन्त्रते अल्पमपि सुखं स्वर्गसुख इव प्रतिभाति। एतदर्थं देशभक्ति प्रारब्धस्य अहिंसा आन्दोलनस्य प्रयोगः अद्य
अभवत्। तस्मात् कालात् आरभ्य प्रतिवर्षम् इदं पर्वं प्रतिवर्षं तस्मिन्नेव दिनाङ्के सम्पूर्णदेशे सर्वत्र समायोज्यते। भारतवर्षे पर्वाणां विशिष्टं स्थानं वर्तते। स्वतन्त्रता दिवसस्य जन्मः 1944तमे ख्रीष्टाब्दस्य अगस्त मासस्य 15 तारिकायाम् अभवत्। अयं भारतीय इतिहासे स्वर्णिम दिवसः सर्वैकमत्येन स्वीकृतः। अस्माकं देशः अयम् आङ्ग्लशासकैः पराधीनः आसीत्। महापुरुषाणां सहयोगेन प्रयासेन च मुक्तः अभवत्। अयं देशः समेषां भारतीयानां त्यागस्य तपस्य पुण्यस्य च परिचायकः अस्ति। अस्मिन् अवसरे सर्वे जनाः तान् देशभक्तान् प्रति श्रद्धा स्मरन्ति। अतः अस्माकं सर्वेषां पावनं कर्तव्यम् अस्ति यत् देशस्य स्वतन्त्रतां रक्षितुं मनसा वाचा कर्मणा च प्रयत्नः विधेयः। अनेन एव अस्याः अमूल्य स्वतन्त्रता रक्षा भविष्यति। अतः उच्यते जयतु भारतं जयतु संस्कृतं। धन्यवादः। स्कूल चेयरमैन, मैनेजिंग कमिटी, रोटरियंस, पास्ट डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन इनर व्हील क्लब, प्रेसिडेंट इनर व्हील क्लब मेंबर्स, प्रिंसिपल, टीचर्स, staff, guardian, parents, guests and media personnel, and my very lovable students. It's a matter of pride and privilege in my part to addressing you all on this 79th Independence Day. I wish you all a very happy 79th Independence Day. Are we really independent? Are we really independent? Yes, we are independent since last 8 years on 15th August of 1947 when the Britishers left our country. आज ये जो खुली हवा में हम सांस ले रहे हैं, ये उन महापुरुषों का बलिदान है जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी देके हमें स्वतंत्र किया है। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, जय राजगुरु, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, बाल गंगाधर तिलक, वीर सुरेंद्र साय, हट्टे सिंह ने अपनी जान की कुर्बानी देके भारत को स्वाधीनता दिलाए हैं। आज हमें अपने आप को भाग्यशाली मानना चाहिए कि हम ऐसे महानुभव के देश में पैदा हुए हैं जो कि अपने जान की बाजी लगा के हमें स्वाधीनता दिलाए हैं। ऐसे महापुरुषों को आज इस पावन अवसर पर सत सत नमन, और देशवासियों को इन महापुरुषों से आज गर्व होनी चाहिए। लेकिन बच्चों, हमें ये आज़ादी को और सुखमय और गौरवशाली तभी बना पाएंगे जब हमें भारत की सारी कमजोरियों को जड़ से मिटाएंगे, जैसे गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, भूमिहीन, उच्च नीच जाति प्रथा, धनी गरीब के भेदभाव को समाप्त करना होगा। हमें हिंसा के रास्ते पिछड़कर अहिंसा के रास्ते को अपनाना होगा। सभी के साथ उत्तम व्यवहार, सभी के साथ समानता लाना होगा। तभी हम सही श्रद्धांजलि उन महापुरुषों को दे पाएंगे। आज हमें अपने देश पर गर्व होनी चाहिए। आज भारत विकसित देश में से दुनिया में गिना जाता है। एक दौर था जब भारत को गरीबी राष्ट्र समझा जाता था। आज भारत दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था है। आज भारत चांद पर पहुंच गया है। खुद की देसी मिसाइल बनाने का क्षमता रखता है। आने वाले दिनों में भारत ओलंपिक मेजबानी का दावा पेश करेगा। भारत बहुत तेज़ी से विकसित हो रही है। देश को आगे बढ़ाने के लिए जो भी हम लोगों से सहयोग होगा हमें करना होगा। इससे हम लोगों की सहभागिता देश को बुलंदी में पहुंचाने में मदद मिलेगी। मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, आज के दौर जो आप लोग गुजर रहे हैं, नशा एक बहुत ही बड़ी चुनौती आप लोगों के लिए सामने है। कितने कीमती जान नशा के चलते युवा अवस्था में आज हम खो दे रहे हैं। चलिए आज हम इस पावन अवसर पर शपथ लें कि ना हम कभी कोई नशा करेंगे, ना ही अपने आसपास किसी के नशा करने को बढ़ावा देंगे। हम ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे हमारे चलते अपने माता पिता को शर्मिंदगी और कष्ट उठाना पड़े। यही आज की स्वाधीनता दिवस पर सबसे बड़ी शपथ होगी। हमारे पूर्वजों ने हमें जो आज़ादी दिलाई है उसे सुरक्षित, सुंदर और शिक्षित बनाएंगे। आइए हम सब मिलकर एक अच्छा राष्ट्र का निर्माण करेंगे, देश का विकास का साथ देंगे, सरकारी संपत्तियों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम अपने कर्तव्यों का निर्वाह करेंगे और भारत के कानून का सम्मान करेंगे, देश के प्रगति में योगदान करेंगे। तभी ही उन महापुरुषों का बलिदान का उचित श्रद्धांजलि होगा। एक बहुत ही प्यारी सी गीत है, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य, अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा। चलिए उन वीर बलिदानों की ओर बार स्मरण करें और नमन करें जिन्होंने देश की संस्कृति, स्वतंत्रता और सम्मान के लिए अपना सर्वस्व अर्पित किया। आखिर में आप सभी को एक बात और फिर स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं।
आप सभी को अपने देश पर गर्व हो। मेरा भारत महान। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। धन्यवाद। Staff and all students and teachers of Rotary Public School and PDC, President, Secretary, all inner wheel members, thank you. Happy Independence Day to all of you. आज का दिन बहुत अच्छा दिन है, जिस दिन हमको आज़ादी मिला था। आज हम लोग अपने आप को गर्व करना चाहिए कि हम लोग ब्रिटिशों के हाथों से, उनके बेड़ियों से अपने देश को रक्षा किए थे। हमारी जवानों ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे देश को उद्धार करके, अपना बलिदान देके, अपना खून बहा के अपना देश को उद्धार किए थे। जिस देश में गंगा बहती है और जिस हाथों में तिरंगा रहती है, वो देश हमारा भारत है। हम भारत का नागरिक के रूप से अपने आप को गर्व महसूस करते हैं। आज का दिन में ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था, हमारी बहनों की सिंदूर मिटाकर मजहब पूछ के हमारी बहनों की सिंदूर को मिटाए थे, मगर हमारे जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर से, अपना गोलियों से हमारे हिंदुस्तान को, हमारा हिंदुस्तान का नाम दिया था। आज का दिन हमारे स्वाधीनता का दिन है और आज का दिन सिर्फ एक तारीख नहीं है, वो दिन है जब गुलामी के बेड़ियों से तोड़कर भारत ने सांस ली थी। 15 अगस्त 1947 वो तारीख जब सूरज भारत के लिए नहीं रोशनी लेके आया था। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। हम स्वाधीनता के दिन में आज पहुंचे हैं। क्या सचमुच मेरा देश सचमुच स्वाधीन हो गया है? नहीं, अभी तक भी बाकी है, क्योंकि हम लोग सब मिल के, हाथों में हाथ मिला के हमारा भारत को और भी स्वतंत्र करना है। देश के जो नागरिक है, युवा है, उनको जैसे जॉब मिल सके, जो गरीबी हटा सके और हमारे नागरिक जो है हमारे देश की, उनको सच्चा सम्मान मिल सके, नारियों को सच्चा सम्मान मिल सके। एक नारी डिप्रेशन में आके अपना खुदकुशी ना कर ले, अपना जो टॉर्चर हो रहा है आज नारी, वो अपना समाज को बताए और पूरा समाज उसको सहायता करे। मैं आज रोटरी प्रेसिडेंट, रोटरी क्लब का सेक्रेटरी और हमारे प्रिंसिपल सबको और पीडीसी हमारे ममता पुरोहित जी को, जितना लोग हमारे इनर व्हील का है, सबको मैं धन्यवाद अर्पित करती हूँ कि आज मुझे मौका दिए थे कुछ बोलने के लिए। और आज मेरा पापा का डेथ का भी दिन है, क्योंकि मेरे पापा लास्ट 15 अगस्त को इवनिंग में मेरे साथ बात किए थे। बोल रहे थे कि मैं 15 अगस्त को भुवनेश्वर आ गया हूँ और आज मैं फ्लैग होस्टिंग नहीं कर पाया, और उसका मन में दुख था। मैं जा रहा हूँ अपना रोटेरियन भाइयों से मिलने के लिए, और थोड़ा देर के बाद मैं सुनती हूँ कि पापा का डेथ हो गया। मुझे इतना दुख महसूस हुआ कि जो मेरे पापा ये रोटरी स्कूल के लिए अपने आप को इतना समर्पित किए थे। हम लोग छोटे छोटे थे, हम लोगों को छोड़ के रोटरी स्कूल का एफिलिएशन लाने के लिए, रोटरी के लिए काम किए थे। इसीलिए मैं मेरे रोटरी भाई लोगों को ये बोल रहा हूँ और इनर व्हील का बहनों को बोल रही हूँ, चलिए हम हाथों से हाथ मिला के संकल्प करें कि हमारे देश के लिए हम कुछ कर सके, हमारे समाज के लिए कुछ कर सके। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। मराठा, द्राविड़, उत्कल, गंगा है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जो हर ठुकराई हुई की शरण स्थली बन जाती है, 7 समंदर पार अपने परदेशियों को भी अपनी ब्रदर एंड सिस्टर कहकर बुलाती है। यह प्रेम की पूज्य भूमि भारतवर्ष कहलाती है, भारतवर्ष कहलाती है। With this, a very proud morning to one and all present over here. I, Pratiksha Das, a student of class 10, standing in front of you to speak few words on the auspicious occasion of Independence Day. Today, as our tricolors flutters very proudly in the air,
we celebrate 79 glorious years of India's independence. 79 years ago, our freedom fighters had dreamed of an India which is free from the chain of foreign rule. They have marched fearlessly, endured suffering, and also had sacrificed their lives so that we could live in the air of liberty. Yes, but dear brother and sister, let us pause and ask ourselves a question. Is independence something that we inherit once and for all? Or is it something that needs to be protected each and every day? The truth is that independence is not a gift, rather, it's a responsibility that now lies on the shoulders of ours. Yes, the youth of India. And the youth of the country should be strength of our nation. But what can we do to preserve our hard-earned freedom? First, we must preserve our unity, as India is the garden of several languages, culture and religion as well. And division weakens us, but unity strengthens us. And we must rise above caste, creeds and religion and first live and see ourselves as Indians. Second, we must defend democracy, because freedom is not only just about waving the flags in the air. Rather, it's about to have the guts to speak the truth, to respect different opinions of the people and to profound justice. And let us participate in our country's democracy with awareness, honesty and with respect for the constitution. Third, we have to fight corruption and ignorance, as corruption eats from the root of the nation and ignorance is just closes our mind. As a youth, we must avoid dishonesty and participate to prevail freedom, love and knowledge. Fourth, we must take oath that for our nation we will serve for the nation in whatever ways we can. We don't have to wear a uniform to serve for our nation. A teacher shaping young minds, a doctor saving lives and an engineer building infrastructure. Everyone is patriot in their own way. And finally, on this Independence Day, let us promise that we will never let the sacrifices of our freedom fighters fade in history books, and we will serve as responsible citizens. And at last, I would like to speak few lines. हर करम अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए, हर करम अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए, ए वतन तेरे लिए. Thank you so much for your patience listening. Signing off with this, and yes, a very very happy Independence Day to all the proud Indians over here. Thank you so much. जय हिंद, जय भारत. के ऊपर मैं कुछ बोलना चाहती हूँ आज स्कूल का एनवायरनमेंट को देख के. बचपन के सपनों का रहा आसमान है, आज़ादी के गीत गा रहा है हर नन्हा जवान है. जो आप फ्यूचर हो हमारा नेशन का, आज आज़ादी के गीत गा रहे हो, कल आप ग्रेट लीडर बनोगे. ये देश आपके हाथ में होगा. स्कूल की गलियों में घूम रहा है खुशियों का तराना, खुशियों का रंग तिरंगा के साथ झूम रहा है इस देश के हर नन्हा जवान, इस देश के हर नन्हा जवान. So, my dear friends, freedom is our greatest gift earned by through the sacrifice of our freedom fighters, our leaders. So let us cherish this, protect the nation always. It is our responsibility to protect our nation. It is not the responsibility of a leader, because we are born as a leader. We are Indian, proud to be an Indian. On this Independence Day, may your heart beat with pride, with our nation and honor with our nation. Nation से बड़ा कोई नहीं होता. जय हिंद, जय भारत माता. था लहू से जिस जमीन ने इनकलाब लिखा था, शहीदों ने जहां पर अपना ख्वाब लिखा था, वो मुल्क आज हमसे ये सवाल कर रहा है, क्या हमने उसका वादा निभाया या सिर्फ किताब लिखा था, किताब लिखा था, किताब लिखा था. सुप्रभात सम्माननीय अतिथिवृंद,
प्रधानाचार्य महोदय, सम्मानित शिक्षकगण, अभिभावकगण और मेरे प्यारे साथियों, मैं अदिति मिश्रा। आज हम सब यहाँ 15 अगस्त के इस पावन अवसर पर एकत्र हुए हैं, जो कि हमारे देश की स्वतंत्रता का प्रतीक है। आज के इस शुभ दिन पर मैं आप सभी के सामने अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। जब हम स्वतंत्रता शब्द सुनते हैं तब हमारा मन गर्व से भर उठता है, पर क्या हमने कभी गहराई से सोचा है कि इस स्वतंत्रता की कीमत क्या है? हम जो आज खुली हवा में सांस ले रहे हैं, अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, अपने पसंद का जीवन जी सकते हैं, ये सब असंख्य वीरों की कुर्बानी के कारण संभव हुआ है। रानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी और ना जाने कितने अज्ञात क्रांतिकारी, जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए ताकि हमारा भारत आजाद हो सके। स्वतंत्रता सिर्फ एक अधिकार नहीं, ये एक जिम्मेदारी है, एक ऐसी जिम्मेदारी जो हमें ये सोचने पर प्रेरणा देती है कि हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। ना सिर्फ स्वतंत्रता दिवस पर भाषण देने के लिए, बल्कि हर दिन को बेहतर बनाने के लिए। हम आज आज़ाद हैं, इसलिए पढ़ सकते हैं, अपने सपने पूरे कर सकते हैं और अपने देश का भविष्य बना सकते हैं। पर क्या हम इस स्वतंत्रता की कीमत को समझ पा रहे हैं? क्या हम जात पात, भ्रष्टाचार और अन्याय से आज़ाद हैं? क्या हम एक सच्चे और अच्छे नागरिक के कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं? अगर नहीं, तो हमें आज ही से शुरुआत करनी होगी। आइए इस स्वतंत्रता दिवस केवल तिरंगा लहराकर ना रुकें, एक वादा करें कि हम हमारे देश की स्वतंत्रता की कीमत को समझेंगे, हमारे देश से सब बददूरों को मिटाएंगे, नारी का सम्मान करेंगे और एक जिम्मेदार नागरिक बनेंगे, क्योंकि हमारे देश से पहले और देश के आगे कुछ नहीं, कभी नहीं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि भारत के दुश्मनों से लड़कर जीतने का हमें जुनून है। भारत के दुश्मनों से लड़कर जीतने का हमें जुनून है। हमारे देश का मान रखने के लिए हमारे शरीर में उबलता खून है, उबलता खून है। जहां सब शपथ लेते हैं कि हर परिस्थिति में रखेंगे देश को सलामत, बस वही है मेरे सपनों का भारत, सपनों का भारत, सपनों का भारत। मुझे ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पावर एंड यूनिटी ओवर फ्रीडम। सम्माननीय मुख्य अतिथि, शिक्षक शिक्षयित्री वृंद और मोर प्रिय छोट बड़ भाई और भौणी, आपण मानकु स्वाधीनता दिवसर अनेक अनेक शुभेच्छा। मु अर्चिता महापात्र, 10वीं श्रेणी छात्री, आपण मानक सम्मुखरे छिड़ा होइतिबारु आज स्वाधीनता दिवस उपलक्षे किछि कहबाकु जाउछि। मते कहिबार सुजोग देइतिबारु मु निजको धन्य मने करूछि। आज जेतेबेले आमे स्वाधीनतार 79तम स्वाधीनता पालन करुछु, आमे मने पकाउछु आम स्वाधीनता संग्रामी मानकर अगणित बलिदान, सेमानकर संघर्ष, सेमानकर त्याग, जहाँ आमको एक स्वतंत्र सार्वभौम देश में बंचिबार सौभाग्य देछि, जहाँ आमको प्रदान करिछि आमर स्वाधीनता। किंतु आमे निजको थरे पचारिबा, कोन प्रकृत रे आमे स्वाधीनता, कोन प्रकृत रे आमे से स्वाधीनता को संरक्षण करूछु? आगे जानिबा स्वाधीनता कोन। से समय 1947 मसीहारे स्वाधीनता माने ब्रिटिश शासनर मुक्ति हेले आजिर समय रे स्वाधीनतार प्रकृत अर्थ हेउचे दुर्नीतिर स्वाधीनता, घृणार स्वाधीनता, दरिद्रतार स्वाधीनता। आमे स्वाधीनता को एक उपहार भावे ग्रहण करूछु। आमे भूली जाउछु जे यहाँ आम पई एक कर्तव्य, एक दायित्व, कारण प्रत्येक अधिकार केवल निज पाई नुहे, निज भारत पाई, निज भविष्य पाई। जड़े प्रकृत नागरिक केवल आधुनिक जुगरे पाद पकाई पताका उत्तोलन करी नुहे, बरं से जड़े एभली व्यक्ति जी अन्यायर विरोध में छिड़ा हुए, जे सम्मान जनाए नारी समाज को एवं सबुठारु बेसी गुरुत्वपूर्ण जी जाति धर्मर भेदभाव करे ना। सारा विश्व भारत सबुठारु
बेसी युव संख्या मानक मध्यरु गोटे देश अर्थ आम भारतर मोट जनसंख्या मध्यरु 65% 35 वर्षरु कम बयसर युव मिलती। एक परीक्षण नुहे यह एक शक्ति एवं शक्ति आसे आमर दायित्व। कल्पना करंतु जदि प्रत्येक छात्र जड़े दायित्ववान नागरिक हो जाए ताहले आमे कौन हासिल कर पारिबा। कल्पना करंतु जदि प्रत्येक सामाजिक गणमाध्यम पोस्ट साहाय्य पाई नुहे एकत्रित पाई वार्ता कराए। कल्पना करंतु जदि प्रत्येक सामाजिक युवक जदि भांगिबा पाई नुहे निर्माण हेबा पाई प्रतिज्ञा करती ताहेले आमे एक स्वाधीन भारत गठन करि पारिबा। आज स्वाधीनता दिवस को एक उत्सव भावे भाविबा नाही एवं प्रतिज्ञा करिबा जे विचार करिबा पूर्वरु साहाय्य करिबा, अभियोग करिबा पूर्वरु कार्य करिबा एवं आशा करिबा पूर्वरु साहाय्य करिबा। कारण आमर स्वाधीनता एक गंतव्य स्थल नुहे यह आम पाई एक यात्रा आमे ए समय नागरिक यार रक्षक। एतिकी कही मु मोर वक्तव्य शेष करुछि। मिसु मोर देह ए देश माटी रे, मिसु मोर देह ए देश माटी रे, देशवासी चाली जानतु पिठी रे। देश स्वराज्य जेते पथे गाड़, देशर स्वराज्य पथे जेते गाड़, पुरुत ही पड़ी मोमांस हाड़ मोमांस हाड़ मोमांस हाड़। मते ध्यानपूर्वक शुणिथिबारु समस्त को मोर अशेष अशेष धन्यवाद।